Hello everyone in the Ansakari, and again we are going to solve the 50 set of questions of the economy paper for the next coming UPSC prelims exam. So let's begin from the very first question, that is question number 51. Scroll करो. नीचे कमांड मानसी के पास है. हम्म, Which of the following are the most likely consequences of rigid labor laws? इंक्रीज Increased कंप्लायंस, compliance हाँ burden, ये होगा. rigid labor laws, increased compliance, increased use of contract labor, entry and exit barriers, difficulties in hiring and firing employees. 4 तो पक्का होगा. हाँ, डिफिकल्टी फोर्थ एंड होगा. हायरिंग फर्स्ट 1 भी होगा. 1 एंड 4 होगा पक्का. इंक्रीज अब यूज आते ऑफ हैं इंक्रीज और कॉन्ट्रा लेवल, ये नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. ये रिजिड कॉन्ट्रा लेवल लेबर. में सी होना चाहिए मेरे हिसाब से. नहीं, आई थिंक 1 2 3 4 होना चाहिए. एंट्री एंड एग्जिट बैरियर फॉर द फर्म्स ऑल होने चाहिए. सारे 1 2 बताऊंगा 3. मैं भी. 1 2 3 हाँ 1 2 3 4. हाँ कॉन्ट्रा लेबर इसलिए प्रमोट होगा क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं हो. ठीक. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. इसके और बाद फर्म्स की भी एंट्री एग्जिट डिफिकल्ट हो जाएगी. वो इतना इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकते और ना ही अपनी मर्जी पे एग्जिट कर पाएंगे. टाइम which of कंज्यूमिंग बिजनेस, टाइम कंज्यूमिंग फॉर द बिजनेस टू हायर एंड फायर. उसको कंप्लाई करना पड़े हर एक रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, इसलिए सेक्टर. ठीक. difference between central sector scheme and centrally sponsored schemes? While the central sector schemes are 100% funded by the union, the centrally sponsored are funded by center and states in the fixed ratios. ट्रू. 60 While the 40 90 10 पैरेलल 100 होता है. central sector schemes are mainly formulated on subjects from the state list of the 7th schedule and centrally नहीं, उल्टा sponsored दिया. rated गलत हाँ. rate. गलत है. ए. Indian automotive industry. India has become the second largest vehicle market in फॉल्स. 2022 after China. False. थर्ड होना चाहिए क्योंकि 3 मिलियन Number 4 of मिलियन कुछ. number of automobiles produced in the country has increased steadily over the last 5 years. ये ट्रू है. स्टेडली 100% FDI. Steadily ठीक है. हाँ 100 थर्ड हो सकता है. 100% FDI is allowed in automobile sector under the automatic route. हो सकता है ये And भी. go only with डी. third. 2 3. तुम प्रवेश. 3 only. हाँ 3 ओनली. हाँ ऑब्वियस बात है ना, मैंने तो गलत ही बोले. 2 3 होना चाहिए. 3 ओनली है. सी. देखो. ग्लोबल में Number अगर फर्स्ट of बोला जाए, automobiles फर्स्ट में used. लार्जेस्ट इंडिया अगर है, होता ट्रक प्रोड्यूसर लार्जेस्ट में. हाँ. थर्ड लार्जेस्ट ट्रक प्रोड्यूसर ऑटोमोबाइल हो गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया encourages FDI 100% automatic rule. और इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस. और स्टेडली इंक्रीज नहीं किया, ऐसे करके मतलब कर्व है. और ठीक. दूसरा गलत है. कर्व है. हाँ ऐसे करके स्टेडली ऐसे होता है ना, उसमें ऐसे कर्व. स्टेडीली ऐसे तो नहीं होता है कि ऊपर जाके फिर नीचे आएगा. हाँ तो स्टेडली नहीं ना, वो इंक्रीज होता पॉजिटिव है. है. हाँ. तो गलत है ये. हाँ क्योंकि कोविड के समय गलत हो गया ना, कोविड के समय में. लास्ट 5 years. हाँ ठीक है. Which of the following are the Ramsar sites in India? Sampara, Yashwant, Thane. Sampara तो है. थाने क्रिक भी होना चाहिए. थाने भी. क्रीक. रामसर साइड पूछा है. I'll go 1 2 3. थाने क्रीक. मैं 1 2 3 मारूंगा. डी. 1 2 3 में भी. डी. चंपारा है उड़ीसा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, थाने ये तो महाराष्ट्र ही है. महाराष्ट्र. Global risk report 21. released by UN office गलत. World Economic Forum. It is released annually based on global risk perception survey. हाँ 2 correct. 2 करेक्ट. वी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक. Unemployment trap. It is a situation deliberately brought by the government to reduce the unemployment and increase demand by going for higher economic growth.
It is a phenomenon where more people are employed than actually needed. It is a situation where the opportunity cost of going to work is higher than remaining unemployed. The situation where the majority of workers are employed in the low-paying or organized sector. I'll go सी या with डी D. होना चाहिए D है हाँ मतलब फर्स्ट टू नहीं होने वाला। where the तो majority of the मैं बात workers करूंगा डी, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है वो, कि मेजोरिटी ऑफ वर्कर लो इम्प्लॉयमेंट। सी भी हो सकता है क्योंकि सी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हाँ work is अपॉर्चुनिटी higher कॉस्ट बहुत ज्यादा हायर है। I'll go with D. मैं I'll go with C ठीक है, मैं डी में D. जाऊंगा, करेक्ट क्या सी है इसका आंसर। ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्करेज द, इसका मतलब जो बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या फिर तो उसी की बात होता है। D. Consider the following statement. Agriculture exports have increased रिफ्लेशन इज steadily. सिचुएशन, वो उल्टा था, पहले वाला रिफ्लेशन नाम था उसका। गवर्नमेंट जो होता है, पहले वाला सिचुएशन डिलिबरेटली ड्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग डिमांड, तो रिफ्लेशन उसको बोलते हैं। Correct. नेक्स्ट, Agri exports have increased गलत हो गया, steadily during the last 5 years. US continues to remain the top export destination ये for फॉल्स India. है, In बांग्लादेश final, होना, बांग्लादेश होना चाहिए मेरे हिसाब से। first is correct एग्रीकल्चरल and second is एक्सपोर्ट्स wrong. First correct मेरे पास. मैं दोनों इंडी मारूंगा इसमें, आई थिंक 2 होना चाहिए पहला यूएसए गलत है। Answer क्या? यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन इंडिया टॉप एक्सपोर्टर पार्टनर फॉलोड बाय चाइना। यूएसए एक इसमें है और एक टेक्सटाइल्स में भी है और आई थिंक इंजीनियर्ड गुड्स में तो नहीं है टेक्सटाइल में भी यूएसए टॉप पे है और अगर देखा जाए तो ऐसे करके है, मतलब स्टेडली इंक्रीज नहीं है, मतलब ऐसे करके जिग-जैग 39 32 39 38 $35 बिलियन ऐसे करके। Sprint स्प्रिंट, challenge. स्प्रिंट It तो aims ये to हाँ it ईज ऑफ डूइंग aims बिजनेस होगा, बी। it aims to एक बार देख लेते हैं सारे. It aims to boost the usage of नहीं indigenous नहीं, ए होगा technology इसका, in Navy. ए है Ease इसका of आंसर। doing business is top 50. Aims to provide free and accessible healthcare for COVID-19. Aims to improve air quality by reducing PM 2.5 concentration in the air. Sprint challenge. ए होना चाहिए ए है इसका आंसर, देखते हैं। ए, याद आ गया, ये किए थे हम लोग इसमें न्यूज़पेपर में। स्प्रिंट इनिशिएटिव, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर अक्वायरिंग आर्म्ड ऑटोनमस बोट, 50th कॉन्ट्रैक्ट किया गया Savalamam in the New Delhi 2022. It aims to boost the uses of indigenous technology in Indian Navy. वही With reference to fiscal trends in the economy, consider the following statements. In the current fiscal year, bank loans to the service sector have surpassed that of the industrial sector. Indian banks have witnessed the highest incremental credit growth in the current fiscal year. हाईएस्ट इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ दूसरा तो करेक्ट है पहला गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से सर्विस सेक्टर नहीं होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा होना चाहिए बैंक लोन टू सर्विस सेक्टर हैज सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी सैचुरेशन की बात करते हैं तो वहां पे इतना एक्सपेंशन का ग्रोथ पॉसिबल है नहीं आई थिंक पहला गलत दूसरा करेक्ट ओनली 2 हाँ सही बात है, सेकंड करेक्ट, पहला Only two. दोनों सही है। बैंक लोन बैंक लोन टू द सर्विस सेक्टर हैव सरपास दोस टू इंडस्ट्रियल सेगमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। Expansion in credit to the services sector has largely driven by loan to the non NBFC के लिए कारण, इसके कारण पहला और ज्यादा है। और सेकंड में लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ ऑल टाइम हाई, तो सेकंड वाला भी सही सही है। Components of new industry policy of 1991. Delicensing of gunpowder, Pause. industrial explosives, and detonating fuse industry. ये डी लाइसेंसिंग कैसे होगा, Abolition लाइसेंसिंग of इसमें हो monopoly गई। and restrictive trade practices limit. A replacement of the Foreign Exchange Regulation Act हाँ 1973 with the 2 and 3 बी। 2 and 3. and restricted trade practices limit abolition Gunpowder को decentralize नहीं करेंगे ना. पहला तो गलत है ये 2 3 बचा ऑप्शन के हिसाब हम्म, से ठीक है
De-reservation of the industries, de-licensing of the industry, gunpowder. Triple one is not correct. ऑब्वियस बात है. डेंजरस केमिकल, टोबैको, सिगरेट, एरोस्पेस, डिफेंस, ये सब में लाइसेंस तो हो गई. तो पैरेलल, बाकी तो सही. पेरा रिप्लेस बाय फीमा, abolition of MRTP. Here is Business the following expectation regarding index, ये गलत है. business expectation index released by ये तो गलत WES gives a हम्म, glimpse of demand conditions in the financial sector. सेकंड सही है. बी. पहला तो खाली फाइनेंशियल सेक्टर की होगा. बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स दूसरा भी गलत होना चाहिए. डिमांड कंडीशंस इन फाइनेंशियल मैं तो सेक्टर, कंप्लीट नहीं लगाऊंगा. तो दोनों गलत लगाऊंगी. मैं भी, दोनों गलत है. ठीक है. आरबीआई क्या का लिखा है है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, आरबीआई. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात होता है. ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, सब पे बात होता है. और सेकेंड वाला गलत इसलिए कि फाइनेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी है. मैन्युफैक्चरिंग है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. सब चीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दिखता है. प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपोर्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सब चीज आरबीआई करता है. Federation of Indian Export Organization. It provides the interface between the international trading community of India and the central and the state governments. It is registered under the Societies Registration Act of 1860. Issues a certificate of origin required as a profit of origin of the goods. Federation Act. करेक्ट होना चाहिए. फेडरेशन ऑफ इंडियन Issue the certificate of origin required as a proof of origin of the goods. Federation of Indian Export Organization हो सकता है तीसरा भी करेक्ट. 2 3 मैं provides 1 और 3 लगाऊंगा, 2 नहीं लगाऊंगा. interface between the international trading community of India and central and the state governments. मैं तीनों लगाऊंगी. तीनों होगा मेरे हिसाब से भी. 1 and 3. डी, तीनों. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन 1860. 1860 में अधिकतर होता है सोशल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. फिर सर्टिफिकेट ऑरिजिन भी करता है ये. 2 लाख एक्सपोर्टर्स को एक तरह से हेल्प करता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन देने के लिए. क्रूशियल इंटरफेस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेलवे, पोर्ट्स एक्सेट्रा. वर्कशॉप कराते हैं, हर काम करते हैं, एमओयू साइन करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. मिनिस्ट्री ऑफ बाहर के जो मिनिस्ट्री होते हैं उनके साथ साइन करते हैं. B2B भी बात करते हैं, हर चीज़ें. तो ये इम्पोर्टेंट बॉडी है फेडरेशन ऑफ इंडियन टैरिफ. Market-based economic dispatch. थोड़ा रुको. Market-based economic dispatch mechanism. It will ensure that the cheapest electricity generating resources available across the country are supplied to meet the overall system demand. It will make states' electricity distribution companies less dependent on the state government. State electricity distribution company is less dependent on the state governments. दूसरा तो करेक्ट है. क्योंकि हाँ, पहला लिखा कि इट विल इंश्योर दैट चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सोर्सेज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री सप्लाई टू मीट द ओवरऑल चीपेस्ट. हो सकता है ट्रू. नहीं, मैं सेकंड मारूंगा. मार्केट बेस्ड है ना, तो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट बेस्ड में. आई थिंक दोनों होने चाहिए. हाँ, सही बात है. सी. हम्म, तभी तो In India, मार्केट बेस्ड होगा. ठीक है. in India, which one of the following is responsible for the registration of civil aircraft? Airport Authority, Bureau of Civil Aviation सी तो नहीं Security, होगा, ए भी नहीं Airport होगा. तो आई DGC, थिंक बी और डी में से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन, डी होना चाहिए. ए DGC. होना चाहिए. ए नहीं हो सकता. ए भी हो एयरपोर्ट सकता. हाँ, वो तो एयरक्राफ्ट की एयरपोर्ट बात हो को रही दिखता है, एयरक्राफ्ट को नहीं दिखता है. है. एयरक्राफ्ट का सिविल है, डी मारेंगे मेरे हिसाब से. डी होगा ना. डी. चलो, उसका काम होता ए, जो सी वाला है ना, सी वाला टैरिफ. टैरिफ देख. हाँ, हम लोग देखे थे. वो टैरिफ. ए वाला एयरपोर्ट से रिलेटेड है और डी वाला जो है डीजीसी है, वो रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी है, हर चीज. एयर सेफ्टी, एयरवर्नेस स्टैंडर्ड. एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप मिनिस्ट्री बोल ऑफ हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर. ठीक है.
Which of the following is the world's first satellite-based two-way capable messaging solution for premium smartphones announced recently? Starlink. वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट टू वे केबल मैसेजिंग सोल्यूशन। स्नैपड्रैगन तो नहीं, स्नैपड्रैगन तो मोबाइल में चिप होता है, पता नहीं। फ्रंटियर एंड तो टीपी। बताते हैं तो ब्लॉकचेन है। क्या हुआ? स्नैपड्रैगन को कर सकते हैं फिर मैसेजिंग के लिए अगर चिप में होता है तो। टू वे केबल सैटेलाइट बेस्ड टू वे केबल मैसेजिंग सोल्यूशन प्रीमियम। हाँ, क्या लगाओगे? डी भी हो सकता है। डी 30। I'll go with A. अब इसमें प्रीमियम स्मार्टफोन बोला है तो मैं भी मारूंगा। मैं ए स्नैपड्रैगन, मारूंगी। सही बात है, स्नैपड्रैगन। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट टू वे केबल मैसेजिंग सोल्यूशन, क्वालकॉम इरिडियम बनाया है इसको। फ्रॉम पोल टू पोल कैन सपोर्ट टू वे मैसेजिंग, एसएमएस, टेक्सटिंग एक्सेट्रा। और फ्रंटियर है जो है यूएस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर याद होना चाहिए। टेथर हो गया, टेथर, टेथर कहाँ पर? और ये पता है तुम्हारा स्टारलिंक तो पता ही। चलो, स्टारलिंक स्पेसएक्स हो गया। टेथर, with reference to telecom sector reforms in India, consider the following: fee sharing mechanism between the government and the telecoms is based on the revenue sharing fee model. The tenure of future spectrum auction is the period of 30 years. Up to 49% of FDI under the automatic route is allowed in the telecom sector. तीसरा तो करेक्ट होना चाहिए, 49% ही होना चाहिए एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। और पहला रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल ही होता है। रेवेन्यू, आई थिंक इस पे इश्यूज है। खाली रेवेन्यू नहीं होता है, और भी जो इनकम आती है ना उसका भी, मतलब वो भी शेयर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ। तो आई थिंक रेवेन्यू शेयरिंग ही बोलेंगे उसको। I'll go 1 and 3. वन तो करेक्ट होगा। टेन्योर tenure for the future spectrum auction is period of 30 years। 49% 3 तो सही होगा। दूसरा गलत 30 होना years चाहिए। तक आता है, हाँ। 1 and 3 हम्म, ए इसका आंसर। 1 and 2। कैसे हो रहा है? 2021 टेलीग्राम सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, रेवोल्यूशनरी मॉडल 1999 में आया। उसके बाद फिर नो स्पेक्टर फीस, 100% एफडीआई इसमें, ये नया चीज है। ऑटोमेटिक 100% है। 100%। With बीओटी reference to public-private partnership project, consider the following regarding build, operate, transfer. A private player is granted a concession to finance, गलत। build, and operate a project for a specified period of time. ट्रू, The risk of the project completely lies with the government. फॉल्स, कंप्लीट लाई ऑन द प्राइवेट प्लेयर। Private party. तभी तो बिल्ड करो, ऑपरेट करो, ट्रांसफर कर दो बाद में गवर्नमेंट को। A only. ए डिस्कस किए थे हम लोग, एचएएम, ईपीसी। और एक share करके। Consider following PM Kisan. Tenant farmers are eligible to get benefits under the scheme. The identified beneficiary gets 6,000 every 4 months under the फॉल्स, scheme. टोटल है Correct, 2000 रुपीज पर मंथ, पर 2 मंथ है per ऐसे कुछ quarter, है। per quarter, per पर quarter. क्वार्टर, हाँ पर क्वार्टर। नहीं नहीं, Annually, In case हाँ, of incorrect declaration, the beneficiary shall be liable for the recovery of transferred financial benefits. incorrect declaration shall 3 be liable ओनली। for recovery of transferred टेनेंट फार्मर financial है ही नहीं, Tenant farm, yes. हाँ, जमीन होनी चाहिए, लैंडेड प्लॉट फार्मर होने है ही चाहिए. नहीं, सिर्फ लैंडेड हाँ, फार्मर है, इसलिए only 3. क्रिटिसिज्म था इसका। सी 3 सिक्स only होगा। पर एनम पर फैमिली, 2000 रुपीज इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। मार्जिनल फार्मर के लिए है, स्मॉल फार्मर के लिए, और जो कम सभी लैंड के लिए है. होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर। और दूसरा है कि हाँ, बहुजन के लिए नहीं है, इनकम टैक्स वही जो रहता है, गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। दूसरा है कि टेनेंट फार्मर वो इज कल्टिवेटिंग लैंड बट नॉट हैविंग अ लैंड होल्डिंग, उनको नहीं मिलेगा। तो ये क्रिटिसिज्म भी था इसका कि सबको क्यों नहीं मिल रहा है। इसी का क्रिटिसिज्म के कारण जो राइथू बंधु स्कीम है तेलंगाना गवर्नमेंट का, वो सबको देता है, ये लेकिन नहीं देता। तो Primary राइथू वाले सब agricultural credit societies, they are outside the purview of banking regulation at 1949 falls.
They are registered under the respective state cooperative society act. Yes, only two. They दूसरा are तो करेक्ट है outside the बैंकिंग for रेगुलेशन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बैंकिंग रेगुलेशन तो नहीं होगा, होना चाहिए सही है, गलत सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आउटसाइड Only होना हाँ चाहिए। होना चाहिए ओनली टू दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्रेडिट सोसाइटी है वैसे तो सोसाइटी है बट क्रेडिट तो प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन रेगुलेट करेगा फिर कोऑपरेटिव जब एक्ट जब नियो बैंक को आरबीआई कर सकता है, तो देखो एक बार आंसर क्या है। खाली ऑनलाइन है सी बोले ना कि कोऑपरेटिव है ना वो एक तरह से, तो उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 tier शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव, और it is registered as a cooperative society. That is why it is outside the purview of the Banking Regulation Act 1949. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है या सिंगल है? मल्टी स्टेट, और दूसरा चीज की बात होता है कि इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कैश काइंड लोन स्टोरेज फैसिलिटी सब चीज के लिए होता है, और 2 tier होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके थ्रू देते हैं। ये क्वेश्चन भी था प्रीलिम्स में, डीसी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वो बात करते हैं कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करें ओवरऑल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। In the context of India's foreign trade policy, which of the following initiative town of export excellence is not correct? Specified towns with good turnover of 750 crore or more may be notified as town of export excellence. All the states in India have at least one common service providers in these areas will be considered eligible for authorization under the Export Promotion Capital Goods Scheme. This is true. The initiative from under the नॉट Ministry कर of पूछे, Commerce and Industry, ये भी ट्रू। और मैं बी है नहीं है इसका आंसर, बी विल बी। हाँ बी में मारूंगा। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव एटलीस्ट वन टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस, तो नहीं होना चाहिए, बी। बी सही बात है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सलेंस से निकला, समय तो नहीं होगा। ई-कॉमर्स एंटिटीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, एक सेकंड ये बोलने दे। नॉट ऑल स्टेट हैव टाउन ऑफ एक्सलेंस, कुछ जगह पर है, 39 बस है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आते हैं। उसके बाद फिर ईपीसीजी जो स्कीम है, इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड और एक्सपोर्ट करने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करने के लिए वो एक प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का काम ये होता है कि उसको मिलता है स्टेटस जो दे हैव द वर्थ ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर सच एज हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सी फूड, फार्मास्यूटिकल प्रमोट करने के लिए उस टाउन को बोलते हैं टीई, वो सब एरिया में प्रमोट करते हैं। E-commerce entities operating in India, they refer to sellers offering their goods or services for sale on an electronic marketplace in India. They are required to provide information to consumers relating to the country of origin at the pre-purchase stage. They are prohibited from organizing flash sales. तू तो पक्का करेक्ट है। दूसरा तो करेक्ट है रेफर्स टू सेलर्स ऑफरिंग देयर गुड्स ई-कॉमर्स एंटिटीज तो सेलर्स को क्या एंटिटीज जो प्लेयर्स होते हैं उनको बोलेंगे ना, क्योंकि जो पहला सेलर गलत होता है होगा। वो ई-कॉमर्स एंटिटी नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी तो हाँ गाइडलाइन पहला गलत होगा पहला गलत है। टू ओनली थ्री भी मैं नहीं हो इसमें सकता, 3 भी नहीं हो सकता, हाँ प्रोहिबिटेड, ओनली टू। फ्लैश ओनली टू 2 सही है। अब देखते हैं एक बार क्या है पहला और तीसरा। तो इसमें फर्स्ट को पहले कैसे किया? फर्स्ट इसमें रेफर्स टू इसका ऐसा किया सेलर्स कि जो अमेजोन है ना करुणा, अगर वो ई कॉमर्स एंटिटी है, अगर वो खुद ही सामान बेचने लग जाए और ई कॉमर्स उसका ही प्लेटफॉर्म है, तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है, उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आप ई कॉमर्स एंटिटी होते हो तो किसी दूसरे को सामान बेचने दो, खुद ही उसका सामान उससे लेकर के अपना टैग लगा के नहीं बेच सकते आप। बाकी मानसी बता देगी। हाँ यही होता है इसमें दो मॉडल होते हैं एक तो इन्वेंट्री बेस्ड होता है इन्वेंट्री बेस्ड में जो ई कॉमर्स एंटिटी होती है वो अपने गुड्स बेच सकता है खुद की इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं और एक ये दूसरा होता है जिसमें जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं इन्वेंट्री में जो इंडियन प्लेयर्स हैं बस वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें कोई एफडीआई नहीं उसमें 0% है तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और लास्ट और लिखा हुआ ना दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग फ्लैश सेल, तो ये गलत है। फ्लैश सेल मिनिस्ट्री होती है। हाँ
फ्लैश है मतलब कि ऑन द स्पॉट 5 मिनट में लीजिए, अभी डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ऐसा वही वाला फ्लैश सेल जो फ्लिपकार्ट ऐसे में आता है कि the flash sale is discount promotion offered by the e-commerce for a short period of time, quantity is limited, हाईयर डिस्काउंट देता है जल्दी से बेचने के लिए, टाइम लिमिटेड, लिमिटेड एबिलिटी, ये प्रोहिबिट नहीं किया गया, मतलब कर सकते हैं आप, अगर आपके पास पुराना प्रोडक्ट है तो वो जल्दी बेचने तो कर सकते हैं। इसमें ये कि 80% जो 70% सेल है वो अलाउड नहीं है, जो ये मतलब हायर 80% तक सेल्स जो होता है वो अलाउड नहीं है, दैट मतलब इज 80% डिस्काउंट टाइप। हम्म ओके। Report on Social Security 2020, it aims to extend social security benefits to workers in both the organized and unorganized sector, including gig and platform workers. हो सकता है। Employees have to complete a minimum of 15 years of service to be eligible for gratuity also. इसमें पहला 10 गलत years. होना चाहिए, गिग वर्कर्स के लिए कहाँ से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बात की हो रहा था बात, ना गिग है, वर्कर, है. हो गिग रहे एंड थे हम लोग लैड ब्लैंक, Paternity benefit is applicable to every हो सकता है। establishment in which 10 or more employees, 1 and 3 लगाऊंगा मैं. 1 and 3 मेरा Second, भी। 10 साल में मिलती है ग्रेचुटी, 15 मिलेगी. हाँ, फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, gratuity shall be payable to the employees less than 5 years, 15 साल गलत है। 5 है. मैटरनिटी, हाँ, मैटरनिटी बेनिफिट सबके लिए, 10 और मोर एम्प्लॉयज के लिए। तो Which of the following statement is correct about African swine fever recently seen in the news? It's a viral. Correct बोला ना? It's a viral that attacks buffaloes. False. It is सेकंड endemic to गलत है, रिस्ट्रिक्टेड sub-Saharan लिखा हुआ, गलत है, and रिस्ट्रिक्टेड कैसे हो? African. Restrictedly. It has recently started affecting human beings. 2. हाँ हो सकता है। सी, There is no cure or precaution available for the infection yet. C. सी सी होना मान, चाहिए। D answer डी है. है। Recently 700 pigs were culled in Madhya Pradesh amid the ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू लिखा हुआ है। They have died, 27 wild boar have died, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। इट ए कंटेजियस वायरल डिजीज, पिग को अटैक करते हैं, बोर को, हाई मोर्टालिटी रेट, यानी ह्यूमंस को नहीं करता है, सिंपल सा है. एंडेमिक है वहीं पर, लेकिन हर जगह फैल चुका है, यूरोप और एशिया में भी, नॉट नोन टू अफेक्ट ह्यूमन बींग, हाँ ह्यूमन बींग में नहीं अफेक्ट करते ये, ठीक सिर्फ है, स्वाइन। इसमें ये ट्रिकी वर्ड और था, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन भी है, क्योर भी नहीं है, नो इफेक्टिव वैक्सीनेशन है, ये सब अच्छा क्वेश्चन है ये सब से रिलेटेड। Washington Consensus, liberalization of FDI, Beijing, self-determination and inclusion of selective foreign ideas, Santiago, social and economic inclusion. सेकंड Washington गलत है, Consensus सही है, और थर्ड 1 बीजिंग 3 मारेंगे। कंसेंसस शायद वुमेन के ऊपर या चिल्ड्रन के ऊपर ऐसा कुछ हाँ हाँ, है ना? इसलिए 1 3 मारेंगे। तो 1 and विवेक 3, से कुछ था, 1 and 3 लगाऊंगा. बने डी इसका 1 2 3। सब कुछ है. बीजिंग वाला कुछ था वैसे, विमेन से था ये वुमेन से चीज, है। रिलेटेड है ना? तो वो डिफरेंट होगा सर, बीजिंग कन्वेंशन होगा, कुछ और होगा। बीजिंग कंसेंसस है, वॉशिंगटन है, सेलेक्टिव फॉरेन आइडिया, आईएमएफ, सेंटियागो इकोनॉमिक इंक्लूजन. ठीक है. बता दे रहे, पहले वाला आईएमएफ करता है, वो इंटरेस्ट रेट लिबरेशन का बात होता है, एफडीआई फ्लो का बात करता है, सही है पहला। सेकंड में बीजिंग कंसेंसस 1980 में हुआ था, चाइनीज मॉडल जेओपिंग, सेल्फ डोमिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज, बीजिंग कंसेंसस। ठीक है। अब आए 1987 में चाइना का, चाइनाज ऑल्टरनेटिव मार्केट टू द लिबरल मार्केट अप्रोच ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन का यूएस लेड, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में जो लिबरेशन, वो यूएस लेड है, बीजिंग कंसेंसस चाइना लेड है एक तरह से, कुछ को अडॉप्ट करिए, कुछ को अपना रखिए, अपना रखिए। और सेंटियागो हो गया कि ऑल्टरनेटिव टू वॉशिंगटन कंसेंसस पुट फॉरवर्ड बाय वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, वो बात करते हैं कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल सही होता है, और एक तरह से थोड़ा थोड़ा बीजिंग कंसेंसस के इक्विवेलेंट है, बस ये बोला गया। ठीक. तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों बात करता है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है तीनों, एग्जाम्पल। तो जो ग्लोबलाइजेशन सेंटियागो वर्ल्ड जीएस बैंक पेपर 1 करता है में है ना? ना, तीनों लिख सकते हैं क्या? सेंटियागो वर्ल्ड बैंक करता है. हाँ, वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन कंसेंसस आईएमएफ हो गया, बीजिंग कंसेंसस हो गया चाइना का मार्केट जो उसमें। Consider the following regarding the World Bank. India is a founding member of the World Bank. 3. हम्म The board governor is the highest decision-making body of the bank. सही बात है. To become a member, a country must first join the UN. नहीं, गलत है, गलत. तीसरा नीचे गलत करना, है। नीचे करना.
डी, हाँ सिंपल सी बात है। अगर वन अगर ज्वाइन करना है वर्ल्ड बैंक तो आपको आईएमएफ ज्वाइन करना जरूरी ये यूएन रहता है यूएन है। नहीं है। आईएमएफ टू एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये हो गया दूसरा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुआ द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर एट द वर्ल्ड बैंक, ये भी हो गया। इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल 1945 बिकेम द वर्ल्ड बैंक फाउंडिंग मेंबर। बाकी सब में भी इंडिया मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, ऐसे आईबीआरडी, ईडा, फिर आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा था, मीगा। एक ही जगह नहीं है इंडिया, वो है सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हाँ। ठीक। एफडीआई इज प्रोहिबिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉटरी सेक्टर? गैम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट, सिगरेट ट्रेडिंग में इन नहीं। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, लॉटरी, लॉटरी गैम्बलिंग, एयर ट्रांसपोर्ट। एफडीआई कहाँ पर बैन है? T4 तो तो है पक्का, T4 में तो बैन है। 3 4 होगा, 5 5 में बैन कहाँ से होगा यार, ट्रांसफर में बैन क्यों होगा? तो 1 2 3 4 होना चाहिए। T4, हाँ 1 2 3 4 2 एयर मिनट रुकना यार। भाई मैं तो ट्रांसपोर्ट, लगाऊंगा ओनली टू। 1 2 3 4। हाँ, एयर ट्रांसफर में बैन कहाँ से होगा? हाँ एयर क्योंकि ट्रांसपोर्ट है ना, सर्विसेज मतलब बाहर तो हाँ एफडीए तो होती है सर्विस, नहीं। अक्सा एयरलाइंस लेकर हर चीज। हाँ 1 2 3 क्या 4। 1 2 3 4 100% एफडीए परमिटेड है एयर ट्रांसपोर्ट में। और भी जगह बैन है, निधि में, सिगरेट, चिट लॉटरी, फंड, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टीडीआर इसको बोलते हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इसमें भी है। तो रियल सिगार, एस्टेट डेवलपमेंट में भी हाँ एफडीआई बैन हाँ, रियल एस्टेट शैल नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड, ब्रिजेस, आरईआईटी अंडर द सेबी। ये अच्छा क्वेश्चन है। रियल एस्टेट में एफडीआई नहीं है। निधि कंपनी, चिट फंड, लॉटरी, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी एक्टिविटीज नॉट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। तो Industrial relations for 2020, a company with 500 employees can lay off the employees without getting approval from the government. Trade unions having more than 51% of the workers as members would be recognized as sole negotiating union. हो पहले तो सकता है गलत सेकंड, है। पहला गलत, 500 सेकंड सही। होगा आई थिंक यहाँ पे, या नंबर, मतलब 500 तो नहीं है, पहले तो गलत है। ट्रेड Only two. यूनियन वर्कर्स एज मेंबर्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। 51% ऑफ द वर्कर्स एज मेंबर्स, हो सकता है बोलना बी, नेगोशिएटिंग सेकंड सही यूनियन। है। पहला नहीं होगा, पहला वाला पहले आई भी थिंक 100 के आसपास होगा, 300 है। 300। सोल नेगोशिएटिव यूनियन मतलब 51% वर्कर अगर मेंबर है तो इट विल नेगोशिएट। तो ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप डायरेक्टली स्ट्राइक करना है तो उसके पहले आप 60 डेज एडवांस दीजिए नोटिस कि मेरे को स्ट्राइक करना है। और ग्रीवांसर रेडिशनल कमेटी होना चाहिए, और ये इंडस्ट्रियल कोड 2020 के अंदर में दिया हुआ है पूरा, विच हैड consolidated all the three act, Trade Union Act 1926, Industrial Employment Act 1946, Industrial Dispute Act 1947। मिनिमम वेज की बात करता है, वर्किंग आवर बात करता है, सेफ्टी के बारे में बात करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सब चीजें बात करता है, लेबर राइट का बात करता है, बार्गेनिंग का बात करता है। ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल कोड 2020। Samej Shikharji was in the news. It is a holy शिखर जी, site of जैन the Jain. ट्राइबल जैन। Jain. Which of with reference to FDI policy बोल, in the हाँ यहाँ पर है, झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। Uttarakhand में ही है। हिल पे है ना, कौन सी हिल है? हाँ एक है। पारसनाथ के बगल में एक पारस तो पारसवनाथ। पारसनाथ सेंचुरी Hmm. फेमस है जैन With की। reference to FDI in the aviation in India, consider the following: 100% FDI is ट्रू, permitted at automatic route in the scheduled air transport domestic scheduled passenger for NRIs. 74% FDI is permitted under automatic routes for greenfield airport service. 49% is permissible in domestic airlines under the automatic route, but this cannot come under the foreign airline company. दूसरा गलत होना चाहिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में 74% एफडीआई नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ऑटोमेटिक रूट में। 49% एफडीआई is possible in domestic airlines under the automatic route, but this cannot come from the foreign थर्ड गलत होगा airline मेरे हिसाब से, 1 एंड 2। मेरे हिसाब से 1 और 2 सही है। एयरलाइंस मेरे हिसाब से 1 और 3 होना चाहिए। आंसर 1 एंड 3।